हेलो स्टूडेंट्स, yesterday हमने सम बेसिक टर्म्स में एंड डेफिनेशंस में पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, इनके बारे में किया था। उसी से आगे टॉपिक लेते हुए आज हम कर रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इट मीन्स a ray is standing on a line, then there are two adjacent angles. These two adjacent angles are called as a linear pair of angles. For example, this AB is a ray and this AB is a line and this CD is a ray. This CD is standing on line AB. It makes two adjacent angles. This angle is named by ACD, and this angle will shown as BCD. These two angles are called linear pair of angles. In short, we will represent it as LPA, linear pair of angles. So linear pair of angles means if a ray is standing on a line, then the adjacent angles converted by this ray on the line is called as a linear pair of angles. Afterwards, we have intersecting lines. Intersecting, that means if two lines intersect means if two lines cut each other, meet at one point. For example, हम इसको एक एग्जाम्पल की फॉर्म में ले सकते हैं. These are the two lines AB and CD. These two lines are intersecting on this point O. Or we can say if the two lines meet each other at a common point O, then the two lines are called as a intersecting lines. So intersecting lines का मतलब यही होगा कि दो लाइन जो हैं वो एक दूसरे को कट कर रही हैं या टू लाइन जो है वो एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, then these are called as a intersecting lines. After intersecting, we have parallel lines. Parallel lines means if two lines doesn't meet each other, two lines are there and they doesn't meet each other, there is no intersecting point. जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट्स या इस पॉइंट पर जहां पर ये मीट कर रही हैं दोनों लाइंस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग पॉइंट. और अगर कोई भी दो लाइंस इस फॉर्म में हो कि उनमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं हो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होने का मतलब दे डजंट मीट ईच अदर, दोनों बिल्कुल हमारे पास इस तरह से ये कह सकते हैं कि टू लाइन जो हैं उनके बीच में डिस्टेंस, कहीं पे भी हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, दिस डिस्टेंस रिमेन्स सेम. परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो किसी भी पॉइंट से हम कैलकुलेट करें बोथ द लाइंस के लिए, वो ऑलवेज सेम रहे. दे डजंट मीट ईच अदर और दे डजंट हैव इन एनी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, देन these two lines are called as a parallel lines. If the first line is AB, second line is CD, then we can say कि AB is parallel to CD. As we shown yesterday that AB line को हम always to both side में arrow mark से show करते हैं, तो AB is parallel to CD. और पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या होगी? इफ द टू लाइंस डजंट मीट ईच अदर और डजंट इंटरसेक्ट ईच अदर, और वी कैन से देयर इज नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बिटवीन टू लाइंस, देन दैट इज कॉल्ड एज ए पैरेलल लाइंस. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल. आफ्टरवर्ड्स वी हैव कोइंसिडेंट लाइंस.
if a line is, there is no two lines, a single line is there, या ये हम कह सकते हैं कि if the two lines lies on a single line, all the points of two lines are intersecting points, then the points are called as coincident lines. For example, a line AB, another line CD. AB and CD, both the lines are on a same line segment or same line. दो डिफरेंट लाइंस नहीं है, एक ही लाइन पर दोनों लाइंस बन रही हैं. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस. So under lines we have intersecting lines, parallel lines and coincident lines. Afterwards we have vertically opposite angle. देखो, जब हमने intersecting lines के बारे में किया है, vertically opposite angles का मतलब क्या है? Vertical opposite angle. जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी इंटरसेक्ट सी डी, इट कन्वर्ट्स फोर एंगल्स एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट. इसको अगर हम वर्टेक्स कह दें, वर्टिकल वर्टेक्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें इसको, तो एक तो एंगल ये बन रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल ए ओ सी. Another angle is this, third angle and fourth angle. There are four angles are converted if two lines are intersecting lines. इस intersecting lines में ये जो दो angles हैं opposite direction में, ये तो दोनों same direction में हो गई. इनको तो हम linear pair of angles भी कह सकते हैं और we can say adjacent angles भी हैं. हम एडजेसेंट एंगल्स को छोड़ते हुए अगर ऑपोजिट साइड में बाकी जो रिमेनिंग एंगल्स हैं उनका पेयर हम लेके चलें, दैट इज कॉल्ड द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. इन दिस केस वी हैव ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सिमिलरली angle AOD and angle COB, AOD, AOD, COB, COB. These two angles are also called as a vertically opposite angle. So these are also vertically opposite angles. सो ये हमारे पास बेसिक टर्म्स के अंदर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड लाइंस के बारे में था. उसके बाद में हम स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ करेंगे, जिनमें सबसे पहले हमारे पास कंडीशन आएगी एक्सियम्स एंड थ्योरम्स. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सियम्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरम्स? हम सबसे पहले इसी टॉपिक को कर लेते हैं. आफ्टरवर्ड्स वी विल हैव some axioms and some theorems related to this. Axiom means which is already proved. हम इसको प्रूव नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली प्रूव्ड है. फॉर एग्जाम्पल सन इज राइजेज फ्रॉम ईस्ट. अब सन इज राइजेज फ्रॉम ईस्ट का मतलब क्या हुआ कि ईस्ट से सन निकलता है हमारे पास. अब वो हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ है, हम उसको प्रूव नहीं कर सकते, बट वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, हम लेके चलेंगे कि ऑलवेज सन जो है वो ईस्ट से ही हमारे पास रेज करता है. सो द स्टेटमेंट विच इज यूनिवर्सल ट्रुथ इज कॉल्ड एक्सियम्स. यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, वी कैन नॉट प्रूव दैट इज ऑलवेज यूनिवर्सली ट्रुथ. बट थ्योरम्स मीन्स by the help of axioms if we can prove any statement. अब अगर कोई एक्सियम्स का यूज करते हुए हम उसमें प्रूव कर सकें उसको, किसी भी पार्ट को, देन दैट इज कॉल्ड एज ए थ्योरम.
हम एक्सियम्स का यूज़ करेंगे उसको थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए, और एक्सियम्स का यूज़ करते हुए अगर थ्योरम्स को प्रूव किया, किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव किया जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड द थ्योरम। यहाँ अब ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास थ्योरम्स आने वाली हैं, दैट मीन्स हम एक्सियम्स का यूज़ करते हुए थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। इनमें दो हमारे पास एक्सियम्स हैं। फर्स्ट एक्सियम इज the linear pair angles, or we can say adjacent angles. If a ray standing on a line, then the sum of the adjacent angles is equals to 180, or we can say the sum of the linear pair of angles is always 180. हमने linear pair को define किया था, a line segment AB, a ray CD, it converts two angles. These two angles are called adjacent angles, and the sum of these two adjacent angles are always 180. That means angle BCD plus angle ACD is always 180, or we can say linear pair of angles are always supplementary. It's first axiom. Second axiom is इसका just opposite part है. If the sum of the two adjacent angles in which, या ये कह सकते हैं कि the sum of the two adjacent angles is 180, then non-common sides are always converts a line. ये हमारे पास सेकेंड एक्सियम है। इसमें the sum of two adjacent angles is 180, then the non-common arms of the angles form a line. सेकेंड एक्सियम। इसका ही जस्ट ऑपोजिट है कि अगर हमारे पास एंगल बी सी डी एंड एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 180, देन ए सी बी इज ए लाइन। नॉन कॉमन का मतलब ये तो कॉमन हमारे पास आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं। दीज नॉन कॉमन आर्म्स मेक्स ए लाइन, कन्वर्ट्स ए लाइन इफ द एडजेसेंट सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल्स टू 180। ये हमारे पास दो एक्सियम्स, इन एक्सियम्स का यूज़ करते हुए हमें थ्योरम प्रूफ करनी है, वो थ्योरम्स हम प्रूफ करेंगे अभी। Yes, in this theorem number 6.1, if two lines intersecting each other, then the vertically opposite angles are equal. ये स्टेटमेंट ऑलवेज थ्योरम को रिप्रेजेंट करती है, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। हाउ टू प्रूव दिस वो हम अभी समझ रहे हैं। देखिए, जब भी थ्योरम दी होगी तो उसमें देन के बाद में या लास्ट जो स्टेटमेंट होती है वो हमें प्रूफ करना होता है। थ्योरम्स की एक कंडीशंस हैं जो हमें याद रखनी है कि ऑलवेज थ्योरम के अंदर जो फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट लाइन होगी वो गिवन होगी, एंड लास्ट लाइन जो होगी वी हैव टू प्रूव दैट लाइन, हमें उसको प्रूव करना होगा। अब उसको प्रूव कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। प्रूफ करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। थ्योरम्स जब भी प्रूफ की जाती है तो उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें ये एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। जब भी थ्योरम प्रूफ करेंगे उस थ्योरम का एक डायग्राम होगा पर्टिकुलर, वो डायग्राम हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दैट मीन्स देयर मस्ट बी टू लाइन्स एंड वी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इन टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये हम एक डायग्राम बनाएंगे इसमें। These are the two intersecting lines A, B, C, D. This point is called as intersecting point, and we will write the given part. It's given that AB and CD are intersecting lines
intersect O, इट्स गिवन। फिर हमें लिखना होता है टू प्रूव। ये डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हमारे पास लिखा जाता है। सबसे पहले हम डायग्राम कन्वर्ट करेंगे, फिर उस डायग्राम में क्या क्या गिवन है वो लिखेंगे, देन क्या हमें प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हमें वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स के बारे में कंफर्म है। नाउ द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर AOD and angle BOC are the vertical opposite angles. AOD and BOC are the vertical opposite angles, and as it's given that we have to prove that these two vertical opposite angles are equal, that means we have to prove that angle AOD is equals to angle BOC. Similarly, one more vertical opposite angles are there, that is AOC and BOD. So or we can prove that angle AOC is equals to angle BOD. यानी ये एंगल जो है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, दीज टू वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमें प्रूफ करना है। इसमें इसको प्रूफ करने के लिए समटाइम्स जो डायग्राम में गिवन होता है उसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस पार्ट भी करना पड़ता है, तो उसके लिए एक थर्ड स्टेप और आता है कंस्ट्रक्शंस, इफ नीडेड टू प्रूव एनी थ्योरम। यानी जब भी थ्योरम को प्रूव करते हैं उसमें अगर प्रूव करना पड़े हमें, तब हम इसका यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। ये रेगुलरली नहीं होगा हमारे पास। ये कुछ कंपलसरी नहीं है कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो हर एक थ्योरम में यूज हो, बट सम थ्योरम्स ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ गिवन पार्ट से हम प्रूफ नहीं कर सकते, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट हमें इंक्लूड करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम हमें इंक्लूड करना पड़ता है। उसको प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन पार्ट करते हैं, बट इसमें कंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं है, नीडेड नहीं है, सो वी कैन नॉट यूज द कंस्ट्रक्शन पार्ट। नाउ प्रूफ में हमारे पास जो गिवन पार्ट है, AB is a line and OD, if we consider OD is a ray, then angle AOD and angle DOB are एडजेसेंट एंगल भी कह सकते हैं और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी कह सकते हैं, आर लीनियर पेयर ऑफ angles. If these two are the linear pair of angles, as we studied in axiom 1, the sum of the linear pair of angles is always 180. That means angle AOD plus angle DOB is equals to 180. Similarly, second part हमारे पास सिमिलर पार्ट में हम करेंगे। सिमिलर पार्ट के अंदर हमारे पास क्या आएगा इसमें कि देखो, जब हमने ये कह दिया, जब हम इसमें AOB एंड BOD सेम हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, तो सिमिलरली हमारे पास DOB एंड BOC आर आल्सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो सेम हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि CD इज ए लाइन and OB is a ray, angle DOB and angle BOC are linear pair of angles. If these two are the linear pair of angles, that means the sum of DOB and BOC is always equals to 180. अब देखो, हमने ये फर्स्ट इक्वेशन बनाई, ये सेकंड इक्वेशन। इस फर्स्ट इक्वेशन में तो AOB और DOB का सम जो था 180 था, इसमें DOB और BOC का सम 180 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल आ रही हैं, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। सो बाय 1 and 2 वी कैन राइट AOB प्लस DOB equals to DOB plus BOC,
DOB टू DOB कैंसिल हो जाएगा, एंगल टू एंगल सेम है. रिमेनिंग पार्ट इज AOB इक्वल्स टू एंगल BOC. सिमिलरली वी कैन प्रूव सेकेंड पार्ट आल्सो, दैट इज AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD. ये हम प्रूव कर सकते हैं. दैट इज द प्रूफ ऑफ आवर फर्स्ट थ्योरम इन ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स. सो हमारे पास इसमें रिपीट कर रहा हूँ मैं, इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दो लाइन्स गिवन थी हमारे पास, टू लाइन्स विच आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, वी हैव टू प्रूव दैट द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इन विच सबसे पहले गिवन टू प्रूफ का पार्ट लिखेंगे, प्रूफ करेंगे. प्रूफ के अंदर ही दिस इज ए लाइन सेगमेंट, दीज टू लाइन्स आर द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. If these are the linear pair of angles, their sum is 180. These are also linear pair of angles, their sum are 180. ये कॉमन पार्ट है, इस दोनों के साथ भी आ रहा है और इन दोनों के साथ भी आ रहा है. 180 180 के इक्वल है. दैट मीन्स ये दोनों पार्ट्स इसके इक्वल आएंगे. दैट मीन्स AOB प्लस DOB इज इक्वल्स टू DOB प्लस BOC. एंगल DOB एंड DOB कैंसल्ड आउट. एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल BOC इज रिमेन्स पार्ट. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AOC इज आल्सो इक्वल्स टू BOD. दैट इज़ आवर थ्योरम नंबर 6.1. सो आप इसको अभी एक बार के लिए 6.1 थ्योरम तक करेंगे. उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कल करते हैं नेक्स्ट क्लास में. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, सो दैट अगर कोई और भी इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें, स्टडी कर सकें. थैंक यू.